امید کرتے ہیں کہ لداخ کی جو 4 ماہ ایجنڈاز ہیں اس میں پھر سے ایک ٹاک ریزیوم ہو جائے. اس منزل تک پہنچے ہوئے ہیں. ہر سختی کو ہر چیز کو یہ برداشت کر سکتی ہے، یہ اپنا سر کٹا سکتی ہے لیکن جھک نہیں سکتی ہے. یہی بتانے کے لیے اور ایم پی صاحب آپ نے اس طرح سے آپ نے ان کو کامیاب بنایا ہے یا اس کے لیے مجبور ہے اور ان کو کامیاب بنایا جائے. آج آپ کے سامنے موجود ہیں ہوئے جس طرح کے مسائل اٹھائے آپ کے پارلیمنٹ کی وجہ سے آج یونیورسٹی میں نہیں لایا تھا. اس طرح آپ کے کر رہا آپ کے انوائری کر رہا ہے. یہ ہمارے حق و جان بات ہے. یہ ووٹ کے لیے بات آج ووٹ جو پسند کرتے کہ اس طرح سے وہ پارلیمنٹ میں ہے. ہم ہمارا آج تک پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں کرتے. انشاءاللہ بحق امام زمان بحق ابا عبداللہ حسین ہم آمادہ ہے، تیار ہے. خدا آپ لوگوں کو کامیاب کرے اور اس تحریک کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی خدا توفیق دے. ساتھ میں حکومت ہندوستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سپریٹ سیٹ پر لداخ. باقی بزرگوں سے میری گزارش ہے آرام سے. ابھی ہمیں یہاں پر آج پہلی دن ہے، رات ہمیں بیٹھنی ہے، کل دن بیٹھنا ہے، پرسوں رات بیٹھنی ہے. کے لیے یقیناً ہمارے ان پروٹیسٹوں میں جس قدر شدت آئے گی اتنا ہی ہم آگے بڑھیں گے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے 3 دن کا جو انشن ہے، 3 دن کی جو ہماری بھوک ہڑتال ہے، یہ 11 تاریخ تک جاری رہے گی. اور اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے کو چیئرمین صاحب جناب قمر علی آخوند صاحب جو کچھ دنوں سے بیمار تھے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحتیاب ہو گئے. ابھی 1 گھنٹے کے اندر ہمارے یہاں پر شامل ہو جائیں گے. ابھی دراز سے تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کا سایہ ہمارے اوپر موجود ہے، تو ان کی گائیڈنس ہمارے لیے موجود ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد وہ یہاں پہ ابھی حاضر ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی ہمارے ممبر پارلیمنٹ جناب حاجی حنیفہ صاحب بھی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ یہاں جوائن کریں گے. وہ بھی لے سے نکلے ہیں اور پہنچنے والے ہیں. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ جو بھی ہمارے پبلک ریپرزنٹیٹیو سے چنے ہوئے نمائندے ہیں اور ہمارے جو پارٹی کے لیڈران، تو سب مل کر ایک جڑ کے لے اور کر کے جڑ کے ہم لوگ اپنے ڈیمانڈز کو سرکار کے آگے رکھ کر اپنے احتجاج کا مظاہرہ کرتے رہیں گے. اس کے بعد میں تقریروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے نوجوان کاؤنسلر دونوں شہید اہل خدا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ذہین خیالات کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه لہذا سرکاری کے دو مطالبہ میں لہذا گرین باسکٹ کے دی انشاء کو یہ بکھردان کو مجبور سو سکتا سے میں نے حکومت کرگیلی خادر مرپی بنیادی مرپی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جانتے ہیں یہ آج کوئی پہلا انشن نہیں ہے. پچھلے 4 سال سے لداخ انشن پہ، دھرنے پہ، پد یاترا پہ، لداخ بند پہ، ہڑتال پہ، یہ سب کچھ کرتی چلی آ رہی ہے. یہ پچھلے سال جو 4 سال سے جو چل رہا ہے وہ 4 پوائنٹس ڈیمانڈز کو لے کر ہے، جس میں اسٹیٹ ہوڈ ہے، جس میں 6 شیڈول ہے لداخ کے لیے، جس میں پی ایس سی ہے، ریکروٹمنٹ ہے، ریزرویشنز ہے، سپریٹ پارلیمنٹری سیٹس ہے. کچھ پہ بات ہوئی ہے اور کچھ پہ ابھی بات ہونا باقی ہے. اور اس میں سے جو سب سے ہماری بنیادی ڈیمانڈ ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ اور 6 شیڈول ہے. ان 2 ایشوز کو لے کر ان 4 سالوں میں ابھی تک کوئی کنکریٹ بات چیت نہیں ہوئی ہے. اور لاسٹ جو ہماری مئی میں بات چیت ہوئی تھی اس میں انہوں نے پرومس کیا تھا، ایچ پی سی کے جو چیئرمین ہیں ایم او ایس نتیانند جی نے، ہوم سیکریٹری نے پرومس کیا تھا کہ نیکسٹ منتھ سے ہمارا آپ کے اسٹیٹ ہوڈ اور 6 شیڈول پہ بات چیت شروع ہوگی. لیکن ابھی تک بات چیت کا کوئی سلسلہ شروع نہیں کر رہے اور ہمیں لگتا ہے یہ جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہے ہیں، جان بوجھ کے یہ ڈیلے کر رہے ہیں.
तो ये हमें मजबूर कर रहा है। अभी तक हम बातचीत पे ही यकीन रखते थे और अब भी हम यकीन रखते हैं, लेकिन अब ये हमें लद्दाखियों को मजबूर कर रहे हैं एजिटेशन करने पे, धरना देने पे, भूख हड़ताल करने पे, लद्दाख बंद करने पे। और इसका सिलसिला आज शुरू हो चुका है करगिल में। ये केडी और एपेक्स की भूख हड़ताल है 3 दिन का, और इसके बाद कमिंग डेज के लिए केडीए और एपेक्स की ज्वाइंट मीटिंग बैठेगी, कोर कमेटी बैठेगी और उसमें डिसाइड होगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होगा। और इसको हमें किसी भी स्टेज तक लेना पड़े, हद तक लेना पड़े, पूरी लद्दाखी आवाम तैयार है। और जब तक हमारा ये डिमांड पूरा नहीं होता, ये एजिटेशन जारी रहेगी। देखिए, आपको मालूम है यह अनशन कोई पहला अनशन नहीं है। लद्दाख में पिछले 6 साल से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हमारा 4 नुकाती जो डिमांड है, लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड देने की डिमांड, लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में लाए जाने की जो डिमांड है, और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए और लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा में अलग अलग सीटों की डिमांड है। ये 4 डिमांड्स को लेकर हम एक लंबे समय से सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से वादे के बावजूद अपने वादे को पाबंद नहीं रहे वो, और एक लंबे समय से उन्होंने बातचीत का सिलसिला बंद किया है। तो एक बार फिर हमने पीसफुली और डेमोक्रेटिकली अपना प्रोटेस्ट किया है। हम उम्मीद करते हैं सरकार तक ये बात पहुंचे। लद्दाख के लोगों के साथ ये कॉलोनियल ट्रीटमेंट बंद होना चाहिए। लद्दाख में जल्द अज जल्द डेमोक्रेसी रिस्टोर किया जाना चाहिए, और जो 6ठे शेड्यूल की सरकार ने जो वादा किया था 6ठे शेड्यूल के लिए, वो जल्द अज जल्द लद्दाख में जो है इंक्लूड लद्दाख को किया जाए 6ठे शेड्यूल के अंदर। लद्दाख में 6 साल से पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, जल्द अज जल्द पब्लिक सर्विस कमीशन का भी क़याम अमल में लाया जाए। यही डिमांड्स थी। इन चीज़ों को लेकर के हम आज यहाँ अनशन पे हैं। ये 3 दिनों का अनशन रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर के हमारे इन डिमांड्स को एड्रेस करने का पूरा जो है वो कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हंगर स्ट्राइक है वो इसलिए रखे गए हैं क्योंकि लद्दाख के डिमांड्स हाईकमांड तक, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाए थे बार बार। मीटिंग्स हुए, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकला। और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एटीट्यूड रहा है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लद्दाख के लोगों का परवाह नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि लद्दाख कितना इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान के लिए। वो जिस एटीट्यूड से लद्दाख को आज देख रहे हैं कि यार ये जितना भी चिल्लाएं, जितना भी बोलें, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर यही एटीट्यूड रहता है तो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनके बॉर्डर एरियाज। जब तक बॉर्डर एरिया स्ट्रॉन्ग हो, बॉर्डर के लोगों के सिंपैथीज, बॉर्डर के लोगों के सेंटिमेंट्स आपके देश के साथ जुड़ा हो, तब तक आपके देश पे कोई भी आंख उठा के नहीं देख सकते। लेकिन आपका बॉर्डर एरियाज आपके कमज़ोर हो, वहाँ के लोगों में गुस्सा हो, गम गुस्सा हो, तो वो चीज़ किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो आज हम ये आवाज़ देना चाहते हैं कि हमारी मांगें सुनी जाएं। बहुत जायज़ मांगे हैं। हम क्या मांगते हैं? स्टेटहुड मांगते हैं, हम मांगते हैं 6 शेड्यूल मांगते हैं, 2 पार्लियामेंट्री सीट मांगते हैं। कोई भी नाजायज़ डिमांड है ही नहीं, सारे जायज़ डिमांड है। तो हम चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बातें सुने, क्योंकि लद्दाख के लोग, करगिल के लोग देश के लिए हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, और इस देश के लिए जब भी जरूरत हो हम तैयार रहते हैं। और कौमियत हर एक के दिल में भरी हुई है। तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, और अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू ये बयान करना चाहते हैं कि हमें अपनी हक दिया जाए, जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। उसके लिए आज ये शुरुआती हंगर स्ट्राइक्स हैं। उसके बाद आइंदा भी जो लाएहमल होगा, आइंदा भी जो भी हमारे ब्लूप्रिंट्स होगा उनको फॉलो किया जाएगा। केडीए की तरफ से जो भी आवाज़ होगी उनको लब्बैक किया जाएगा। उनको लब्बैक कह के हम सब यहाँ साथ रहेंगे और इन स्ट्राइक्स को कामयाब बनाएंगे, हमारी आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अनशन हमारे जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा एक कॉल पे पूरी लद्दाख के अंदर जो 2 बड़ी, एक डिस्ट्रिक्ट करगिल और लेह से जो केडी और एपेक्स द्वारा दिया हुआ एक कॉल पर हम सब यहाँ जमा है। मैं फ़कत इतना कहना चाहता हूँ कि ये अवाम, ये बीट अपनी समाजी और शरीफ फरीज़ा अंजाम देने आए, और ये बताने के लिए आए हैं कि जब जब हमारे लीडर्स पुकारेंगे और जब जब लीडर्स कहेंगे, हम अपने लीडरों को साथ शाना बशाना
इस खत्ते की लद्दाख की बका और हयात के लिए हम लड़ने के लिए, हम मैदान में उतरने के लिए हमेशा राजी और तैयार हैं। और ये बताने के लिए, ये जताने के लिए आज इतनी कसीर तादाद में हर तंजीम, बिना मजहब, बिना तंजीम और बिना किसी पॉलिटिकल पार्टीज को नाताक रखते हुए सब यहाँ जमा हुए हैं। जो ख्वाब देखे हैं, लद्दाख ने जो कुर्बानियां पेश की है, इस कौम को जब भी जरूरत पड़ी है तो लद्दाख हमेशा साबित कदम रहे हैं। आज भी हम जहां बैठे हैं, इन जगहों से जब इन पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो 1999 के याद आते हैं। वो वक्त जब हमारे लोग वॉलंटरीली हमारे आर्मी के शाना बशाना पहाड़ों में जाते थे इस कौम के एजेंडा है। लेकिन वो 4 पॉइंट एजेंडा क्या जाहिर करते हैं? अगर हम स्टेटहुड मांग रहे हैं तो लद्दाख की बका मांग रहे हैं। हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं हम सब जानते हैं कि आज के हंगर स्ट्राइक जो शुरू हुए हैं, ये सब क्यों शुरू उलमाए किराम, सादात इल्ज़ाम, बुज़ुर्गान, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नहीं हो नाउमीद इकबाल अपने कश्त वेरा से, नहीं हो नाउमीद इकबाल अपने कश्त वेरा से, जरा न हो तो ये बढ़। अपने मुस्तकबिल के लिए इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और अपने हक को लेकर और अपने मुस्तकबिल के बच्चों की जिंदगियों को आबाद करने की हम कोशिश करेंगे। हम अपने हक के लिए आवाज बुलंद करेंगे और करगिलों में, लेह वालों में, लद्दाखियों में एक वो जो ताकत है हमारे सोच में, हमारे फिक्र के अंदर लद्दाखियों के जुल्म, सितम, करप्शन नाम की चीज नहीं है। हम अपने